एक तनवीर और एक वहाज स्टार्ट करने ताकि जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वहाज और डॉक्टर तनवीर आप दोनों रेडी? जी जी। जो एग्जाम वाले लोग हैं वो आपने इसको भी साथ में चलना है, ठीक है? हम पहले अपने लोगों से स्टार्ट करेंगे जो रेजिडेंट हमारे जूनियर्स हैं, फिर उसके बाद आप पे आएंगे सारा वाइवा और सब चीज़ आगे फिर डिस्कस होगी। ये इनडायरेक्टली आप लोग के लिए एग्जाम में जो लोग अपियर हो रहे हैं हम आप लोगों को भी इन्वॉल्व करेंगे। शुरू में ये इससे स्टार्ट लेंगे तो हमारे जूनियर है, अभी ये जूनियर नहीं बल्कि इसकी सीनियर की ट्रेनिंग खत्म होने वाली है, तो देन वी विल इन्वॉल्व यू पीपल। ओके ओके। पहला कौन करना चाहते हैं? तनवीर आप करना चाहते हैं या वहाज करना चाहते हैं? मैं कर देता हूँ। ये आपके सामने सिनेरियो है, हम कुछ नहीं कहेंगे, आपने खुद देखना है उसको। देन व्हाट यू विल, ये शॉर्ट केस है, शॉर्ट केस में आपने सिर्फ एग्जामिनेशन करनी है। ओके सर। जो एग्जामिनेशन करेंगे आपने वो बोलना है। आपका टाइम शुरू हो गया सर। ठीक है सर। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है। अब बस टोटल 3 मिनट है, इसमें आपने लोकल जो भी इसका एग्जामिनेशन है आपने सारा करना है, ठीक है? और आपने जो एग्जामिन करना चाहते हो वो बोलना है आपने। ठीक है सर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक। एक मिनट मसूद साहब आप हैं, वेलकम सर बैक। अस्सलाम वालेकुम जी। सर कैसे आप? ठीक ठाक? ठीक है, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा मसूद साहब, ये शॉर्ट केसेस हैं? हाँ देख लिया, मैंने पढ़ लिया। और बस इसमें 5 मिनट उसके पास है, 5 मिनट हमारे पास है, हमने 5 मिनट में उससे वाइवा लेना है। अजान हो रही है, 1 मिनट अजान को टाइम। ओके, अजान का जरा वेट करते हो आप? हाँ बिल्कुल। ठीक है, उसका सिटी करा लो और दूसरे पेशेंट इंटरव्यू कल के परसों ले रखे। हेलो, निकाल लो जी जी वहाज। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट माय एग्जामिनेशन बाय एग्री। आवाज आ रही है मेरी?
by greeting and brief introduction about myself and taking the informed consent. I will start my examination with the inspection. On inspection, I would in this picture I'm appreciating that there is a swelling of around 2 centimeter present over the right parietal region and it is approximately around 4 to 5 centimeter from the midline. And I can also appreciate the hair growth over the scalp, and patient's head circumference apparently appears to be the normal. And after over smooth surface of the skin overlying the swelling is smooth. And after doing the inspection, I'm going to do the palpation. And on palpation, I would like to see first the temperature of the swelling by normal, abnormal, and then normal skin. And I would like to see the tenderness of the swelling, and then comes to the local examination of the swelling with the measuring tape. I would appreciate what exactly the dimensions of the swelling in anterior, posterior, and superior lateral direction. And I would also see the consistency of the swelling, and I would see any pulsatility of the swelling by first checking the pulsatility over the swelling. And I would also like to compare it with the normal pulse, either it is the normal pulse of the patient, either it is synchronous or not. And after doing that, I will check the reducibility and compressibility, and then I will do the trans-illumination test. By same means, in palpation, I would also like to measure the normal head or OC circumference of this patient, and I would also like to palpate the sutures of this patient. I would also like to see that there are certain marks or shunt marks, scar marks present over the patient's surface, hair scalp surface. After doing the palpation, I would like to do the percussion. First, I would also in palpation, I would also like to see if I can appreciate any bony defect around this swelling, and the margins of the defect if I can appreciate as well. After doing all the palpation, I would go for the percussion, and I will percuss the scalp by coming close to the head of the patient, and I will percuss it with the finger. After doing the percussion, I will do the auscultation, and in auscultation, I would apply a stethoscope over the swelling to hear about any bruise in this patient. Okay, आपकी एग्जामिनेशन पूरी हो गई? जी sir. I would like to ask relevant questions if I can. मसूद साहब, आपने कुछ पूछना है इसे? मसूद साहब हैं? जी उसका टाइम पूरा हो गया सर, आप कुछ पूछना चाहते हैं पूछिए। अच्छा, तो क्या समझते हैं आप डॉक्टर साहब, what it is? As it can be any congenital swelling, it can be any traumatic swelling, but I didn't ask the relevant history about the trauma. I have to ask it. It can be any traumatic swelling, it can be any primary pathology of the bone, or it can be any infectious pathology. अच्छा, तो अगर ट्रॉमेटिक पैथोलॉजी है तो क्या है ये? Sir, traumatic pathology है तो most likely it is the growing skull fracture, or it can be any previous skull defect with like patient may suffer from trauma and previously may have a defect like burr or any craniectomy, or this can be the traumatic pathology, or underlying skull fracture with overlying subgaleal hematoma can be there. सबगेलियल हेमाटोमा हो सकता है। अच्छा, और अगर कंजेनाइटल में क्या हो सकता है? Sir, congenital में it can be any convexity, encephalocele, it can be any dermal sinus. अच्छा, ये आपने क्या कहा किस जगह पे है ये? What is the location? What is the location of this? It lies in the right parietal lesion, front of parietal lesion,
and approximately around 4 to 5 centimeter from the midline. I cannot appreciate the coronal suture from this cut of this picture. अच्छा भाई, ठीक है लाल साहब। अच्छा, आपने लोकल एग्जामिनेशन की, आपने रिलेवेंट एग्जामिनेशन नहीं की इसमें? नहीं सर, वो रेलेवेंट तो मैं पूछना चाह रहा था, आपने आगे नहीं, एग्जामिनेशन आपका टाइम पूरा हो गया, आपने रिलेवेंट क्या देखेंगे इसमें? सर रेलेवेंट एग्जामिनेशन में मैं इसमें देखना चाहूँगा अबाउट size of the fontanelle, any tense bulging fontanelle is there, or I would also like to see if patient is having a sunset sign or any other swelling on the scalp or the back, and I would also like to see if patient is having any other congenital defect like dextrocardia or any ये बताएं अगर इस पेशेंट में आप ग्रोइन स्कल फ्रैक्चर सस्पेक्ट कर रहे हो तो क्या इसमें फिर सेटिंग सनसाइन होगी इसमें? नहीं सर, इसमें नहीं होगी। तो फिर आप क्यों देखना चाहते हैं? On the basis of just examination, if I don't know about the history of the patient, about the trauma, then I would like to do as a broad spectrum. अगर इसमें मैं आपसे कहूँ कि इसमें आप 2 क्वेश्चन करें इस मरीज से, क्या क्वेश्चन करेंगे आप? 2 question. First of all, I would like to ask about either this swelling present since birth or it has developed later on, and the history of trauma is really important. तो इसकी हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा ये 1.5 महीने पहले गिरा है बच्चा। जी सर। तो और अब क्या पूछेंगे आप? 1.5 महीने पहले गिरा है तो I would ask about the swelling, कि इधर जो आफ्टर द जब गिरा था तो उसके बाद जो है उसको जो है इंजरी कहाँ पे हुई थी, और उसके बाद उसको अगर हेड इंजरी हुई थी तो क्या हुआ था, और स्वेलिंग के कैसे अचानक बढ़ रही है या कम तो नहीं हुई बीच में या बढ़ती ही जा रही है। अच्छा, अगर ये if this patient is presenting with history of fall 1.5 month back और उसकी स्वेलिंग हो गई है तो what is your diagnosis? My diagnosis is growing skull fracture. ये वसु साहब और कुछ पूछना चाहते हैं आप पूछें इनसे। ग्रोइंग स्कल फ्रैक्चर कितनी एज में होता है यूजुअली? Sir, growing skull fracture 90% take place before the age of 3, and most likely at the age of 1 the most chances are there कि 1 साल की उम्र में उसको होगा। अच्छा, ठीक है, तो क्या करेंगे, कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे आप इसको? सर इन्वेस्टिगेशन इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन सेंड करेंगे, उसके बाद स्कल रेडियोग्राफी पे आएंगे टू आइडेंटिफाई ईदर इट इज रेलिया फ्रैक्चर और एनी सूचर विद ओवरलाइंग हेमाटोमा। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है इसके अंदर सीटी स्कैन। अच्छा, अगर ग्रोइंग स्कल फ्रैक्चर है तो कैसे ट्रीट करेंगे? सर अगर ग्रोइंग स्कल फ्रैक्चर है तो पेशेंट को ट्रीट ऐसे करेंगे, मतलब सर्जरी इज द अल्टीमेट ऑप्शन फॉर द ग्रोइंग स्कल फ्रैक्चर, डेफिनेटली। अच्छा, ठीक है। इसका सर सीटी स्कैन दिखाएं आपको? सीटी स्कैन लगाया भैया, दिखाएं इसको। ओके, चलो आपको अभी दिखा रहे हैं। इसी मौसूद साहब इसी जरा और चीज पूछी बीच में, हम सीटी स्कैन दिखाएंगे आपको। अच्छा ठीक है, तो सर्जरी में कोई खास चीज? सर सर्जरी में क्या हेलो होता है, क्यों हो रहा है? हेलो हेलो जी जी हाँ जी सर, सर्जरी के सर मुझे अपनी आवाज बता दी। तुम्हें अपनी आवाज खुद ही आ रही है? जी आप सही है। तो सर्जरी में सर इसके प्रिंसिपल हैं सर्जरी के। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू परफॉर्म अ वाइड क्रेनियोटमी अराउंड दिस फ्रैक्चर। उसके बाद यू हैव टू आइडेंटिफाई द डिफेक्ट and then release the dura from the defect, and then you have to perform the watertight closure of the dura, and then you have to place a bone over it, bone plasty.
अच्छा हेलो। हाँ ठीक है। अच्छा सर, ऐसे ना अभी इसे तो हमने ले लिया ना ये शॉर्ट केस, यहाँ पे एग्जाम की लड़की हाँ भी है, काफी सारे हैं ना, 5-6 लोग हैं एग्जाम के। हाँ भाई, तो कोई आए सामने फिर, हाँ तो उसे जरा सख्त क्योंकि सख्त क्वेश्चन करे, सख्त सवाल करे, सख्त। क्योंकि क्योंकि शॉर्ट केस में तो इतना ही टाइम लगता है, इससे ज्यादा तो नहीं लगा देने। बिल्कुल बिल्कुल। जी कौन शाकिरुल्लाह साहब, ये सर आप एक शाकिरुल्लाह साहब हैं, उनसे जरा पूछे आप, वो हमारा अस्सलाम मेंबर है, परमानेंट मेंबर है, 2-3 महीनों से हमारे मेंबर है। हेलो जी शाकिर साहब, जी शाकिर साहब। हेलो सर, हेलो सर, आवाज नहीं आ रही आवाज है? नहीं आ रही है सर। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हमारी आवाज आ रही है आपको? हेलो सर, जी बोले, आप बोले। मसूद साहब आप नहीं उनसे क्वेश्चन सुना। करें। हेलो, अच्छा शाकिर साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही। अच्छा ये बताएं कि इस पेशेंट में आपने देख लिया ना, दिस जी पेशेंट सर, इज ए केस ऑफ ट्रॉमा विद स्वेलिंग आफ्टर दैट ट्रॉमा। इसकी उम्र है 1.5 ईयर, 1.5 महीने पहले गिरा है, माँ की गोद से गिरा नीचे ना। जी सर। तो इससे और क्या चीज आप पूछना चाहेंगे और क्या देखना चाहेंगे इसमें? आपको अभी क्लियर होगा कि व्हाट इज द डायग्नोसिस, तो आप क्या चीज पूछेंगे और क्या चीज आप देखेंगे इसमें? सर, history of trauma is important, वो तो बता दिया हमने and ना, को गिरा है। then the Fontanelle examination, that is there is ICP is high or it's normal, so that is important for me. अच्छा, एक मैं इसको मैं दूसरी तरफ, Or anterior Fontanelle examination is important, शाकिर साहब ये पता चल गया and आपको कि other is the head circumference. शाकिर, कैन यू हियर मी? हेलो, जी आप बोले, वो सुन रहा है सर। सुन रहा है? अच्छा, आपको ये पता चल गया कि ये ग्रोइंग स्कल फ्रैक्चर है, ठीक है, लेकिन ये Well, पेरेंट्स के जी ट्रॉमा नहीं हुआ कोई भी, क्या मतलब है इसका? जी सर। हेलो, ग्रोइंग स्कल फ्रैक्चर है आपकी डायग्नोसिस, यस सर। लेकिन पेरेंट्स कहते हैं कि जी नहीं, कोई चोट वोट कभी नहीं लगी इसको, कोई सी भी कोई चोट नहीं लगी? नहीं। हेलो, हाँ, चोट नहीं लगी कोई। then it may be a minor trauma, sir, which is not noticed by the parents of अच्छा, the ये बच्चा patient. 1.5 साल का है ये, लेकिन 3 मरतबा आ चुका है अस्पताल चोट लगने से पहले। Okay sir. हेलो, हाँ हेलो सर। अभी सर का सवाल ये है कि वो 3 मरतबा हॉस्पिटल आ चुके हैं ऑलरेडी, पहले भी बच्चा, जी सर। फ्रीक्वेंट उसके विजिट्स हैं हॉस्पिटल के, तो आप बताएं क्या आपका डायग्नोसिस है, या क्या आप उसमें कुछ और पूछना चाहेंगे या और देखना चाहेंगे? आप क्या पूछना चाहेंगे? क्या आप एग्जामिनेशन करना चाहेंगे? Sir, क्या definitely I will ask the previous record that why he came for the and what has done in the hospital. If वो the तो नहीं, patient was admitted, वो वो नहीं अवेलेबल, बस ये पता है कि चोट लगने की वजह से आया था पहले। सस्पिशन क्या yes होगा sir. आपका डॉक्टर शाकिरुल्लाह? छोड़ दे इनको, क्योंकि और बताए। वीकनेस देखने के लिए या पेशेंट में कोई सीजर्स वगैरह की हिस्ट्री लेंगे सर? आप भी छोड़ दें, कोई और बताए। और कोई बताएं? सर प्रोग्रेसिव देखेंगे कि लेजेंड जो ये है ये प्रोग्रेसिव बारी बारी नहीं, कोई बोलें। और इसमें ये होता है सर, सर, हाँ, और देख पल्स रहे हैं। स्टेबिलिटी देखेंगे, सीएसएफ लीकेज वगैरह। यार नहीं, देखिए, आप भी आप नहीं। लोग क्वेश्चन सुन लेना, ये बच्चा इससे पहले भी 2-3 मरतबा आ चुका है। आप बताएं मुमताज, आप असॉल्ट हो सकता है सर। असॉल्ट क्या बोलते हैं उसको फिर? क्या टिपिकल हिस्ट्री होगी? हाउ यू व्हाट यू विल डू फॉर दैट?
So there will be also the other like the fracture of the long bones and the rib fracture. Yeah, so you will examine the patient complete and you will image the patient complete. क्या बोलते हैं इस चीज को? क्या बोलते हैं इस इंजरी को? अब्यूज हुआ है सर कोई? चाइल्ड अब्यूज. Child abuse. Shaken baby. Non-accidental delay. Non-accidental injury. Yes. तो उसको हम खुद डील नहीं करते, इसको हम पीडियाट्रिशियन को कहते हैं कि भाई तुम देख लो, इसको ये मसला है इसका. और ये बाहर के मुल्कों में ये होता है कि फिर यहाँ पे एजेंसीज होती हैं, वो फिर बच्चे को बचाती हैं माँ बाप से कि भाई वही मार रहे हैं. कौन मार रहा है? बाप मार रहा है कि माँ मार रही है, और ये सारी. लेकिन बेसिक इसकी है कि नॉन एक्सीडेंटल इंजरी, और इसको फिर बच्चे को पूरा आपको एग्जामिन करना है. इसमें क्या चीज होती है? आई में क्या चीज होती है? आई में ब्रेन और आई में और क्या चीजें मिलेंगी आपको अगर नॉन एक्सीडेंटल इंजरी? ब्रेन में सर बायलेटरल सबड्यूरल हेमाटोमा मिलता है, और आई में रेटिनल हेमरेजेस मिलते हैं सर. बाकी सर लॉन्ग बोन फ्रैक्चर और रिब फ्रैक्चर मिलते हैं. हो गया. चले लाल साहब के ओवर टू लाल साहब. अच्छा मुमताज, ये बताएं कि ग्रोइन स्कल फ्रैक्चर पे आते हैं ना, ठीक है. मैं एक क्वेश्चन में सबसे मैंने किया और अभी तक मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया. इस पेशेंट में आपने ये स्वेलिंग के अलावा और क्या देखेंगे इफ दिस इज केस ऑफ ग्रोइन स्कल फ्रैक्चर? सर बोनी डिफेक्ट देखेंगे सर. बोनी डिफेक्ट तो आप लोकल में देख रहे हैं ना, पल्पेट कर रहे हैं, लेकिन और क्या चीज रिलेवेंट एग्जामिनेशन पे क्या देखेंगे आप? सर रिलेवेंट एग्जामिनेशन में सर बच्चा है तो उसमें तो नहीं दे सकते सर प्रोनेटर ड्रिफ्ट या ये लोबार साइन. नहीं, अगर आपने बच्चों में कोई वीकनेस देखनी है तो किस तरह देखेंगे आप? 1.5 साल का बच्चा है, इसमें आप वीकनेस असेस कर सकते हैं. हाउ यू विल डू दैट? सर उसके लिम्ब मूवमेंट्स देखेंगे. हाँ, तो कैसे देखेंगे आप? सर बच्चे को लाई करवाते हैं, उसके बाद सर उसके आर्म्स या लोअर लिम्स जिसको आप असेस करना चाह रहे हैं उसको पहले खुद मूव करेंगे, तो उसके साथ वो फिर आपको सपोर्टिव वो खुद ही बच्चा मूव करना शुरू कर देगा, तो आइडिया हो जाएगा कि वीकनेस है या नहीं है. अगर आप उसको कोई टाइप पकड़ा दे तो क्या वो हाथ आगे नहीं लाएगा उसकी तरफ? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर. इसलिए मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ जब भी आप एग्जाम में जा रहे हो तो आपने जरूर कोई ना कोई बच्चा को एग्जामिन कर रहे हो तो खिलौने साथ ले जाने होते बच्चों के. और प्लांटर्स भी, अगर तो बच्चा बड़ा हो तो आप प्लांटर्स भी देख लो, ठीक है. और हिस्ट्री में और क्या पूछेंगे आप इससे? इन लोगों में ज्यादातर क्या होता है हिस्ट्री में? सीजर्स होते हैं सर. फिट्स का बिल्कुल मस्ट पूछ रहा है, ठीक है जी सर. अच्छा ये बताएं कि ये ग्रोइन स्कल फ्रैक्चर है आपके सामने सीटी स्कैन पे नजर आता है, इसका क्या मैकेनिज्म है, कैसे होता है, और शुरू में क्या होता है और बाद में क्या होता है, और व्हाई इट इज कॉल्ड ग्रोइन स्कल फ्रैक्चर? ये हैदर साहब सर इनिशियल हियर इज द ड्यूरल डिफेक्ट. डॉक्टर हैदर बता देगा जी. हैदर साहब सर. वालेकुम सलाम. इनिशियली ये सर जब ट्रॉमा हो जाती है सर तो देयर इज अ लीनियर फ्रैक्चर, then sir due to CSF pulsation or due to raised intracranial pressure the arachnoid comes out through the swell through their fracture, and the fracture then becomes enlarged. Slowly that the fracture become enlarges and become visible. That's why it is called growing skull fracture. ये बताएं कि ग्रोइंग स्कल फ्रैक्चर बनने के लिए किस चीज का होना जरूरी है कि ये चीज हो तो ग्रोइंग स्कल फ्रैक्चर होगा? सर लीनियर फ्रैक्चर इनिशियली मतलब लीनियर फ्रैक्चर होगा, और सर नीचे एरेक्नाइड पल्सेशन जो है एरेक्नाइड प्रेशर होगा, तो ड्यूरल इंजरी सर, ड्यूरल डिफेक्ट. ड्यूरल टियर इज मस्ट. अगर ड्यूरल टियर नहीं है तो फिर कैसे होगा? हेलो सर. और उसकी साइज भी है दैट इज 4 मोर देन 4 मिलीमीटर, तो उसमें चांसेस ज्यादा होते हैं. ओके अच्छा ये बताएं कि ये अगर आप देख रहे हैं ये आपको नजर आ रहा है, ये कर्सर आपको नजर आ रहा है? आप लोग देख रहे हैं कर्सर को? नहीं सर, नहीं आ रही. नो सर. ये सीटी स्कैन का पिक्चर आप लोग नजर आ रहे हैं आप लोगों को? जी सर. जी हाँ सर. तो फिर आपकी कर्सर भी नजर आनी चाहिए. मेरी कर्सर तो नजर नहीं आ रहा. नजर नहीं आ रही. जी सर अब आ गया. ये ब्लू लाइन बोन का इनर साइड जो है ना वो ज्यादा फ्लैटेड है ना, जो इनर प्लेट. ये क्यों?
बताएं भाई। अच्छा ये बताएं कि एनीवन कैन क्लासिफाई द ग्रोइंग स्कल फ्रैक्चर। तो सजाद साहब हैं पेशावर से जो कल तो था, आजकल आज नजर आ रहे कि नहीं, मुझे तो उसकी नाम लिस्ट में नजर नहीं आ रही। सजाद है? Okay, so who can tell us about the classification of growing skull fracture? जी बशीर साहब। सॉरी सर, क्लासिफिकेशन मुझे नहीं आती। कोई और बता सकता है? ये कौन सा फ्रैक्चर सर? नहीं पता। तो आज बताओ ग्रोइंग स्कल फ्रैक्चर की किस क्लासिफिकेशन होती है? Sir, growing skull fracture has been divided into 3 stages, and the first stage is in which there is a dural tear, and through which just out pocketing of the arachnoid matter take place without evisceration of the brain parenchyma. And the second stage is in which there is arachnoid out pocketing with with some amount of the brain parenchyma, as well as with or without gliosis. And the third stage is also called as the prosencephalic cyst, in which there is a evisceration, as well as the brain around that fracture will become necrotic, and it is replaced by a cystic fluid, that is the CSF, and the cavity is created, that is the prosencephalic cavity. So there are तो three. ये कौन से ग्रेड में है ये वाला? Sir, it's grade 2. अच्छा मुमताज बताएं कि ग्रोइंग स्कल फ्रैक्चर में प्रिंसिपल ऑफ सर्जरी क्या है? The principle of surgery is that sir, क्रेनियोटॉमी हम जो है ना वो बड़ी करेंगे। पहले प्री आप स्कैन पे देखेंगे फ्रैक्चर कितना है, जैसे पूरी जो है ना वो फ्रैक्चर हमारे क्रेनियोटॉमी में आ प्रिंसिपल ऑफ सर्जरी आपने जी जब ऑपरेट करना चाहो तो उस वक्त क्या प्रिंसिपल आप फॉलो करेंगे? सर पहले से हम ड्यूरल रिपेयर और क्रेनियोप्लास्टी इसका प्रिंसिपल है सर। यानी आपने नॉर्मल ड्यूरा तक पहुंचना है, क्योंकि इसमें ड्यूरा काफी टाइट होता है। जब तक आप नॉर्मल ड्यूरा तक नहीं पहुंचेंगे आपका जो मकसद है पूरा नहीं होगा। जी सर। जी मसूद साहब और कुछ पूछना चाहते हैं आप, वरना हम फिर सेकंड केस शुरू कर लेते हैं। नहीं, आई थिंक ये काफी हो गया। तो ग्रोइंग स्कल फ्रैक्चर जो है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट केस में अगर वार्ड में पड़े हैं तो आ सकते हैं, और इस बार तो चूंकि पेपर पेशेंट्स होंगे तो इसमें देयर आर चांसेस। और अच्छा, एक थोड़ा जी सर एक छोटा सा कमेंट है इसका कि जब ये इंस्पेक्शन कर रहे थे तो मेरे ख्याल में ज्यादातर एग्जामिनेशन जो है वो इंस्पेक्शन पे ही हो जाता, जैसे स्किन कलर है, पल्सेशन है, साइज है, ये सारी चीजें आप इंस्पेक्शन में भी बता सकते हैं। आपको इसको मेजर करने की बाद में ठीक है, उसको आप कंफर्म, बट यू हैव टू जस्ट से ऑल दिस थिंग्स कि जी रेडनेस नहीं है, पल्सेशन नजर आ रही है कि नहीं नजर आ रही, और साइज इतना है, और जस्ट इंस्पेक्शन पे ही। तो यू डोंट नीड टू वेट टिल यू टच इट। दैट्स ऑल। ठीक है, तो इसमें ये फिट्स की हिस्ट्री, ट्रॉमा की हिस्ट्री और वीकनेस प्लांटर्स, ये जरूरी चीज है। ठीक है, ये देखने लोकल के अलावा, और बाकी प्रिंसिपल अफसर ये है कि भाई आपने नॉर्मल ड्यूरा तक पहुंचना है। बाकी वही क्रेनियोटॉमी कर लेते हैं, और जो पेरियास्टियम है ऊपर उसको बचाते हैं ताकि उसको हम नीचे एज अ ग्राफ्ट इस्तेमाल करें। और बोनी डिफेक्ट जितनी है उसको कवर करने के लिए डिपेंड करता है कि आप फ्लैट रखना चाहते हैं या आप रिब का वो ग्राफ्ट रखना, क्या चीज रखना चाहते हैं ना। और इन लोगों में पोस्ट अप लीक की चांसेस ज्यादा होते हैं इन्फेक्शन, तो उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से बाद लोग जो है इसमें ड्रेन भी डालते हैं, लंबा ड्रेन, ताकि वो लीक वहाँ पे ना हो। तो डिपेंड करता है, हर चीज का अपना होता है। कॉम्प्लिकेशन वही है, यानी सीसेफली की हेमाटोमा इफेक्ट्स बढ़ सकते हैं और इन्फेक्शन हो सकती है, सारी चीजें। तो शुड वी स्टार्ट द सेकंड केस सर? सर एक आपने सवाल पूछा था सर, जिसमें आपने पूछा था कि इनर साइड ऑफ बोन इज फ्लैट सर, वो तो थोड़ा काइंडली उस पल्सेशन की वजह से ना, यानी जब अंदर से क्योंकि इसमें द ड्यूरा इज टॉर्न, और जो अरेक्नाइड के नीचे जो सीसेफ है, और ये समटाइम इट इज कनेक्टेड विद द वेंट्रिकल एज वेल, जो ग्रेड पे है। तो जो ही इंट्राक्रैनियल प्रेशर सीसेफ की पल्सेशन होते हैं, ये पुश करता है इसको। शुरू में 4-5 मिलीमीटर होते हैं, उसके बाद इसकी साइज बढ़ती है और इनर प्लेट पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है, तो उस वजह से इनर की इरोजन ज्यादा होती है और इसकी साइज ऐसा बढ़ती है। इसको ग्रोइंग स्कल फ्रैक्चर कहते हैं, क्योंकि
शुरू में फ्रैक्चर 4 मिलीमीटर था और अभी 7-8 और इससे बढ़ सकता है, और इनर पे प्रेशर डायरेक्ट उस पे होता है, इनर प्लेट में, इस वजह से उसकी फ्लैटनिंग हो जाती है। समझ आ गई ना? जी सर, थैंक यू सर। अच्छा मसूद सर, हम सेकंड केस शुरू कर लें? जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी तनवीर साहब, ये एक पेशेंट है जिसको ये उसके लेग्स हैं, और लुक एट दिस पिक्चर, आपको क्या लगता है, और सर एग्जामिन कर ले। मसूद साहब, ये क्लियर है आपको ये तस्वीर? जी बिल्कुल, कर लिए डायग्नोस मैंने। ठीक है जी। Sir, I will first of all introduce myself to the patient, then I will take permission for the examination. I will start my examination with the inspection. In inspection, I will see the any visible scar mark or the prominent veins. अच्छा, इसमें आपको जो चीज नजर आती है ना तनवीर, आप उसको बोलते जाओ कि इसमें ये चीजें हैं। Okay, sir. So, sir, after that, I will see the bulk bilaterally of the legs, and then I will see the tone. And sir, after tone, I will see the power, and after power, I will see the reflexes, and both the knee reflex and sir the ankle reflex. Then sir, I will see the coordination with the help of heel shin test. Then finally, I will do the sensations, and I will check the sensory level, and then I will go for the relevant examination, and I will also ask 2 questions. But in this picture, sir, I am just saying that the picture patient's left foot is dorsiflex, and the patient's right foot is in plantar flex position. सर आवाज नहीं आ रही। मसूद साहब, ये आपका केस है, आप उसे पूछ लें। सर रेलेवेंट का आई एम आस्किंग फ्रॉम यू, शुड आई गो फॉर द रेलेवेंट और नहीं? मसूद साहब, अगर आपको कुछ कोई शॉर्ट केस है? यस सर, ये आपका शॉर्ट केस है, इसमें कुछ you have to finish your time, so you just do whatever you want to do. Okay sir, in relevant I will just see the spine, and I will check the spinal tenderness, and sir I will also go for the examination of the brain. I will just do the plantar pronator drift, and sir I will also do the and sir I also do the dorsiflexion and the plantar flexion of the foot, and I also do the inversion and the eversion of the foot, and also I will do the dorsiflexion and the plantar flexion of the toe, and sir I will also check the plantars of the patient. So I will also do the abduction of the thigh. क्या हो गया आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लिया आपने? यस सर। तो क्या आपकी डायग्नोसिस? सर इन दिस पिक्चर like foot drop लग रहा है सर। Foot drop, okay. So how you will investigate that one? Sir, or what can be the cause? Sir, the causes of the foot drop, sir, it may be due to the compression of sir L5 nerve, or sir it may be due to the injury of the common peroneal nerve. Sir, it may be due to the any lesion in the parasagittal region of the brain. और अगर L5 की नहीं है कोई प्रॉब्लम, लेकिन L4 की है तो? सर अगर L4 की प्रॉब्लम होगी तो सर उसके अंदर पेशेंट को सर सेंसेशन मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द लेग में नहीं होगी सर, अप टू बिग टो। सवाल ये नहीं है, आपने कहा फुट ड्रॉप है, इसके कॉजेज L5 पैथोलॉजी है। यस सर। तो इसका मतलब है, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि L5 से होता है, सिर्फ खाली L4 से नहीं होता। दैट व्हाट यू आर सेइंग? सर मोस्टली L5 ठीक है इसमें, मोस्टली L5 है। अच्छा, L4 की क्या मोटर सप्लाई है और L5 की क्या मोटर सप्लाई है मेनली? सर L5 जो है ये सप्लाई करता है आपका जो है सॉरी पेशेंट टिबियस एंटीरियर मसल, एंड सर पेरोनियस लॉन्गस एंड पेरोनियस ब्रेवियस, एंड सर L4 मोस्टली मसल्स जो एक्सटेंशन ऑफ द नी करते हैं उनको सप्लाई करता है। अच्छा ऐसा है।
अच्छा, और सेंसेशन क्या होता है L5 और L4 की? सर L4 की सेंसेशन मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द लेग अप टू द मीडियल मेरिलस, और सर L5 जो है सर उसमें फर्स्ट वेब स्पेस है। फर्स्ट वेब स्पेस। अच्छा, और L1 की क्या मोटर सप्लाई है? सर L1 सप्लाई द फ्लेक्सर्स ऑफ द हिप सर। अच्छा, और कॉमन पेरोनियल नर्व और L4 या L5 स्पाइनल रिलेटेड तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? यस सर। सर अगर कॉमन पेरोनियल नर्व की इंजरी की सर पेशेंट की डॉर्सिफ्लेक्शन और इवर्जन चली जाएगी, बट सर अगर L5 की इंजरी की सर पेशेंट की डॉर्सिफ्लेक्शन इन्वर्जन और इवर्जन दोनों चली जाएगी, और एबडक्शन ऑफ द थाई भी चली जाएगी। अच्छा, कॉमन पेरोनियल से आपने कहा इन्वर्जन चली जाएगी? नो ठीक सर, है ना? इवर्जन एंड डॉर्सिफ्लेक्शन। और इन्वर्जन क्यों नहीं जा रही? Sir, because eversion is caused by the tibialis posterior muscle, which is not supplied by the common peroneal nerve. अच्छा, ठीक है। तो how you will investigate this patient then? Sir, I will go for the baseline investigations and then sir radiological investigation. क्या In कराएंगे baseline, आप? sir, I will go for the MRI of the sir इसके अलावा सर मैं इसको common peroneal nerve और उसके बाद L5 रेडिकुलर से डिफरेंशिएट करने के लिए EMG भी कराऊंगा पेशेंट की। तो क्या आपने कहा नर्व कंडक्शन कराएंगे आप, न्यूरोफिजियोलॉजी कराएंगे और सर MRI लंबोसेक्टल स्पाइन सर। अच्छा, तो न्यूरोफिजियोलॉजी में इसको कॉमन पेरोनियल नर्व आ गया है, लेकिन इसको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। व्हाट यू विल डू फर्दर? सॉरी सर, क्वेश्चन मैं समझा नहीं। इसको कॉमन पेरोनियल नर्व की पैथोलॉजी आ गई है आपको? यस सर। तो एनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन यू विल डू? Sir, X-ray of the fibula to see the traumatic injury. ट्रॉमेटिक इंजरी तो नहीं है इसको। अच्छा, चलो भाई, कोई इन्वेस्टिगेशन है इसकी? So I would like to have blood glucose and ESR level as yes well. sir, blood glucose and ESR. तो नहीं है ना, नहीं है इसको। नर्व कंडक्शन लास्ट ईयर वो तो हो गई ना नर्व कंडक्शन वेलोसिटी, तो उस पे आ गया ना कॉमन। आपको अभी भेज रहे हैं। हाँ जी, ये सर उसके एक्सरे हैं, इसकी ट्रॉमा की हिस्ट्री भी है। यस सर, वही सर नेक ऑफ फिब्यूला का फ्रैक्चर है सर, बिकॉज कॉमन पेरोनियल नर्व जब शार्टिक नर्व से मतलब डिवाइड होती है शार्टिक नर्व, तो कॉमन पेरोनियल नर्व नेक ऑफ फिब्यूला के साथ ट्विस्ट होके आती है। तो मोस्ट कॉमनली जब भी नेक ऑफ फिब्यूला का फ्रैक्चर होता है उसमें कॉमन पेरोनियल नर्व की इंजरी भी होती है। इसमें क्या होता है, अगर ये सारी चीजें नहीं है ना, तो कभी कभी ये नी जॉइंट की सिस्ट भी होती है, वो भी कंप्रेस करती है कभी कभी। Sir, can we say ultrasound to do ultrasound in such cases कि अगर नर्व कंडक्शन स्टडी में आया और कोई रिस्क फैक्टर नहीं तो अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं? अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, एमआरआई पे आता है ज्यादातर, वो एमआरआई ऑफ द नी कर लें आप। ठीक, ठीक है, तो ये तो अच्छा केस है। कोई और करे इसी केस को जरा जल्दी से दोबारा, ज्यादा और बेहतर। ये सजाद साहब अभी नजर आ गया, सजाद दावड़ साहब। ठीक, अस्सलाम वालेकुम सर। सर अभी इंस्पेक्शन पे एग्जामिनेशन स्टार्ट करूं या आगे इसको? नहीं, एग्जामिनेशन दोबारा करें, क्योंकि इन्होंने क्या है कि तरतीब थोड़ी सी इन्होंने इस पेशेंट को फुट ड्रॉप है और इसको एग्जामिन कर ले, कैसे एग्जामिन करेंगे आप? ठीक है सर, आफ्टर इंट्रोडक्शन myself sir, I will take consent. Foot drop is on the right side. ठीक है सर। Sir, after introduction and consent, sir, I will look do inspection of the foot. Sir, an inspection there is a slightly changed position of the right foot, which is a plantar flex as compared to the left one. There is no visible scar, no visible emaciation or decreased mass of the small muscles of the foot. There are I will look around if there is any other in the posterior side or on the medial side, if there is any scar, any deformity, any visible mass, or any visible pulsations, any surgical mark, and
then I will just look to the bulk of the muscle of the calf muscles of the both front and will compare on inspection. After that, I will first compare the temperature of the two of both the foot. After temperature, then I will feel if there is any tenderness, any deformity that can be apprehended with the examination. Then I will look around and will check for the tone of the ankle joint as well as in the knee joint, and then compare it to the others from. Then I will look for examination of the power. Then individually, first in the big toe, then the dorsiflexion moment, and then plantar flexion of the both knee, and will compare them. And then I will examine the power of the knee joint and thing. After power, I will look for the reflexes, whether the reflexes are present, absent, or weakened, and will compare both the ankle of the ankle as well as the knee jerk responses. Then I will go for the planters and look whether the plantar is absent or exaggerated, and will compare to the both sides. Then after this, I will ask for the extension of the examination. In the extension, I will look around the knee joint, whether it is mark of trauma or any deformity. And after that, I will do then SLR and then spine examination. I will look for spine any visible scar, any surgery. Then I will look for tenderness, if there is any tenderness at the spine level. And then after, I will go for the parental drift. And then I will cover the patient and thank the patient. Yes, sir. देखना चाहेंगे इसको? मैं तो मेरे ख्याल में हो गई सारी चीजें। कमेंट्स क्योंकि जो पहले कैंडिडेट ने किया था तो उसने थोड़ा मिक्स कर दिया था। सिंपल इसमें आपको लेग के एग्जामिनेशन करने का आया तो आप बाकी चीजें देखें, जनरल और ये सब चीजें, बल्क टोन पावर रिफ्लेक्स सिंपल। क्योंकि आपने जो पहला कैंडिडेट था उसने जो है मोटर पावर जो है एसोसिएटेड एग्जामिनेशन में डाल दी थी। अच्छा, दूसरी चीज जो एक है वो सबके लिए, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कई दफा, अगर मेरे पास इस तरह का पेशेंट आएगा जिसको फुट ड्रॉप मैं समझ रहा हूँ, जस्ट आस्क हिम टू वॉक, है ना। पेशेंट को बोलो चल के तो दिखाओ थोड़ा सा, अगर उसको कोई सीवियर वीकनेस नहीं है तो, देन एवरीथिंग विल बी ऑब्वियस। बिल्कुल सर, सही है ना। ये तो आपकी जनरल लाइफ के लिए भी बिल्कुल ठीक है। और उसको और बेहतर बनाने के लिए आपने स्कार देखे हर जगह, नी पे देखा आपने, स्पाइन में भी देखा आपने, तो सर पे भी देख लो, ठीक है ना। राइट सर। क्योंकि एक दफा FCPS में मुझे आया था मेरे एग्जाम में, तो उसको फायर आर्म इंजरी थी नी पे, और यहाँ पे FRCS में मुझे आया था उसको पैरासिटाइटल मेनिंजोमा था। राइट सर। हाँ, तो दैट्स आई थिंक आपने किया तो सब चीजें कंप्लीट, बट दीज आर द टू थिंग्स यू कैन। डॉक्टर रहमान साहब आप कुछ? यानी जिस तरह मसूद साहब ने कहा, ये वॉक कराना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसमें डायरेक्ट आपको पता चलता है कि भाई क्या है। वैसे अगर हम वॉक कराएंगे तो क्या होगा इसमें? सर उसमें लिंपिंग गेट होगा और सर फुट ड्रैग करेगा जमीन जिसमें। फिर असद साहब क्या होगा? असद साहब बताएं क्या होगा उसमें? असद साहब इसको इस तरह से नहीं बताएं, आप ये बताएं कि पेशेंट से क्या पूछेंगे आप हिस्ट्री में, अगर आपको इजाजत दी जाए तो। चलिए, अगर फुट ड्रॉप है तो पेशेंट से क्या पूछेंगे आप? सर हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा और हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा के अलावा और क्या पूछेंगे? वो तो हमारे पास सर के एक्यूट है सर, या आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है क्रॉनिक लो। आजकल तो ये इसका जमाना आ गया यहाँ पे कि जी बल्कि पाकिस्तान में भी हो रहा है, टेली क्लिनिक हो रही है ना। जी तुम अगर टेलीफोन पे तुम बात कर रहे हो पेशेंट से और तुम्हें पता करना है कि फुट ड्रॉप है कि नहीं है, क्या पूछोगे तुम उससे? आप उससे क्या पूछेंगे? सर चप्पल उतर जाने का पूछूंगा। क्या पूछोगे? सर वो चप्पल या शू जो पहनते हैं ना, जैसे चप्पल पहनते हैं वो उसकी उतर जाती है, पाँव खींच के चलता है, ये पूछेंगे उससे। तो एड़ियों पे चल सकते हैं, ये पूछ सकते हैं उससे। एड़ियों पे, हाँ ठीक है।
सही है बिल्कुल। और सर क्योंकि फुट अगर बाइक वगैरह या किसी ऐसी जगह बैठेगा जहाँ पर फुट हैंग करेगा तो उसकी चप्पल उतर जाएगी। आमतौर पे ये होता है कि जी जब वो चलते हैं ना तो ये पैर मार के चलते हैं, तलवा उनका जी जमीन हाँ पे सर। क्लैप करता है और स्टेयर्स जब चढ़ते हैं ना तो फिर उनका टो जो है वो स्टेयर्स में कैच हो जाता है। जैसे ओके सर। सड़क से फुटपाथ पे चढ़ रहे हैं तो उनका टो लग जाएगा उसमें, या सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो उनके जो है ना टो कैच करता है स्टेप्स पे। ठीक सर। राइट सर। सर इसको फ्लेयर फुट। अच्छा ये बताएं कि इसमें यानी फुट ड्रॉप हो गया भाई, यानी शॉर्ट केस में तो इतना टाइम नहीं होता, बिल्कुल शॉर्ट टाइम 5 मिनट का टाइम होता है, तो आपने उसकी काजेस ढूंढने हैं भाई ये फुट ड्रॉप क्यों हुआ है। तो आप शुरू करें कॉमन पेरोनियल नर्व, शियाटिक नर्व का जिक्र किसी ने नहीं किया, शियाटिक नर्व में फुट ड्रॉप होता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फुट ड्रॉप ड्यू टू कॉमन पेरोनियल और शियाटिक नर्व, दोनों में क्या फर्क होगा? सर मैं इसमें जी सर कॉमन पेरोनियल कॉमन पेरोनियल और शियाटिक नर्व में सर दोनों में क्या फर्क होगा? सर कॉमन पेरोनियल अगर जाएगी तो उसमें डोर्सिफ्लेक्शन भी नहीं होगी, फुट एवर्जन भी नहीं होगा। तो लेकिन अगर शियाटिक डिवीजन से गई है तो उसमें फिर डोर्सिफ्लेक्शन भी नहीं होगी, इवर्जन भी नहीं होगी, इन्वर्जन भी नहीं होगी और नी की फ्लेक्शन भी मतलब उसमें इफेक्टेड होगी। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? सर उसमें पेरोनियल डिवीजन उसमें हम कहते हैं कि शियाटिक नर्व की गई हुई है। को फ्लाइल फुट कहते हैं सर। किसी ने कुछ लफ्ज बोला क्या? फ्लाइल फुट सर, बिल्कुल वो फ्री होता है इन ऑल डायरेक्शन। अच्छा ये बताएं कि सपोज यानी ये पेशेंट है फुट ड्रॉप है दैट इज ड्यू टू पेरोनियल नर्व इंजरी, और इस तरह मसूदा ने बताया ये हमने आई थिंक 2-3 साल पहले इस्लामाबाद में एग्जाम था और फुट ड्रॉप हमने रखा हुआ था उस एग्जाम में। ये सारे लोग देख रहे थे ये फुट ड्रॉप, लेकिन कोई बंदा उसका नी वहां पे उसकी फायर इंजरी थी, कोई एग्जामिन नहीं कर रहा था। तो इसमें आपने एग्जामिनेशन एक्सटेंड करनी है, आपने कॉमन पेरोनियल की जगह देखिए, आप शियाटिक वाला देखिए, आप बैक देख ले, और आप जो है ना जो पैरासाइटिल के लिए चीजें देख ले। और दूसरी बात है कि अभी कोई बंदा कंपेयर नहीं कर रहा था, आपने अगर फुट ड्रॉप है तो आपने राइट लेग को कंपेयर करना है, आपने सेंसेशन कंपेयर करनी है। हाउ वुड यू नो कि इसकी सेंसेशन कम है या ज्यादा है, ये तक आप लेफ्ट से कंपेयर नहीं करेंगे। सो ये चीज जरूरी है जी। हाँ सर, एग्जाम में जो शियाटिक नर्व है सर उसको फिर उसको कंसेंट लेंगे एग्जामिनर से कि आई वांट टू एग्जामिन द बटक एरिया फॉर द शियाटिक नर्व इंजरी। आपने पूछना है, यस आपने पूछना है कि आई वांट टू एक्सपोज द पेशेंट, जो भी आपको लगता है ना, बिल्कुल आप कर सकते हैं। हर चीज के लिए आप पूछें, नी के लिए भी आप पूछेंगे क्यों, नी तो ऊपर पड़ी है ना, अगर हमने आपको बिल्कुल सामने नहीं रखा हुआ, देखिए इस पेशेंट का नी नजर तो नहीं आ रहा। बिल्कुल ये बताइए कि दिस इज अ केस ऑफ फुट ड्रॉप दैट इज सेकेंडरी टू कॉमन पेरोनियल नर्व इंजरी, और ये इसको एक हफ्ता पहले हुआ है ना, अब कैसे मैनेज करेंगे इसको? एक हफ्ता पहले उसकी इंजरी हो गई है, एक हफ्ता हो गया अभी तक, और ये मरीज अब कैसे मैनेज करेंगे? Initially, we will conservative treat the patient, and after 3 to 4 weeks, we will do the inches of the patient, and we will check that the patient is improving or not. So after that, we will decide. सर आफ्टर 3 to सर इनिशियली कंजर्वेटिव मैनेज करेंगे, आफ्टर 3 to 4 वीक्स हम इसकी ईएमजी करवाएंगे और उसको बेसलाइन के साथ कंपेयर करेंगे ना, तो इंप्रूवमेंट आ रही है या नहीं। इन केस अगर नहीं आ रही तो अराउंड 4-5 वीक्स के बाद हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये बताएं कि इसका ईएमजी शुरू में करोगे कि नहीं करोगे? सर 3-4 वीक्स नहीं करते, बेसिकली शुरू में नहीं करते। तो शुरू में क्यों नहीं करते और बाद में क्यों कर रहे हो? Sir, initially there is trauma, so the result of the NCs and EMG are not so quite good. अच्छा, टाइप्स ऑफ इंजरी क्या-क्या होती हैं पेरिफेरल नर्व की? सर सेल्डम क्लास क्लासिफिकेशन होती है सर, इसमें ट्रैक्शन इंजरीज होती है और ट्रांसेक्शन हो जाता है, एंड नहीं सैंडम क्लासिफिकेशन होती है, उसमें 4 क्लासेस होती है। एक तो मतलब जो लोएस्ट क्लास होती है वो न्यूरोप्रैक्सिया होता है,
उसके बाद न्यूरोमेटेसिस होती है और एक्सोनोमेटेसिस होती है 3rd क्लास पे। 3 क्लासेस होती हैं पेरिफेरल नर्व। अगर न्यूरोप्रैक्सिया है तो फिर न्यूरोप्रैक्सिया अगर पेशेंट को है, इट मींस देयर इज ओनली it's a milder injury and there is only a conduction loss with intact epineurium of the nerve and न्यूरोफिजियोलॉजी ये कराएंगे न्यूरोप्रैक्सिया। फायदा नहीं है। सर अगर न्यूरोपेरेक्सिया है तो वो स्पॉन्टेनियसली मतलब वापस रिकवरी हो जाएगी उसमें। डॉक्टर लाल रहमान इज आस्किंग के जी शुरू में ओके कराने का क्या फायदा है? हाँ फिर जो है ना क्या करेंगे? न्यूरोप्लेक्सिया को वेट करेंगे सर, वो टाइम के साथ इम्प्रूव। 2 to 3 weeks में सर सर अगर वो ड्यूरिंग अगर फर्स्ट जो ट्रॉमा हो गया है जी जी। अच्छा, ये बंदा कह रहा था कि 3 या 4 हफ्ते के बाद हम EMG करेंगे, तो उसमें क्या नजर आएगा? सर डिस्टल वेलोसिटीज और कंडक्शन जो होती है वो डिक्रीज होती है इसमें। नहीं EMG में तो नर्व EMG में रीजनरेशन दो चीजें देखते हैं, एक लेटेंसी देखते हैं, एक वेलोसिटीज देखते हैं, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी और इसमें लेटेंसी। यो प्लीज देखते हैं सर अगर हमें ड्यूरिंग ट्रॉमा के आपकी आवाज कट रही है बेटा, कोई और बता दे। ये बताएं कि नर्व इंजरी में हम कब उसको ऑपरेट करते हैं, शुरू में क्यों नहीं करते, और कभी कभार हम शुरू में भी ऑपरेट करते हैं, उसकी क्या इंडिकेशन बनती है, और लेट क्यों ऑपरेट करते हैं? सर अगर शार्प लेसरेटेड वुंड्स हो, इंजर्ड हो, तो उसमें हम अमूमन 72 आवर्स के बाद करते हैं ऑपरेट, ना अर्ली ऑपरेट करते हैं तो, और एंड टू एंड एनास्टोमोसिस करते हैं उसमें। सो बाकी अगर इसमें इस वजह से कर रहे हैं लेट के, क्योंकि हम देख रहे होते हैं कि वापस अगर पेशेंट की जो इंजरी है रिकवरी होती है नहीं होती, इस वजह से। तो how would you know about the recovery? कैसे पता चले कि रिकवरी हो रही है कि नहीं हो रही? सर सेंसेशंस वापस, सेंसरी डिस्टरबेंस रिकवरी होना शुरू होगी। कोई और चीज है इसके अलावा जो आप लोगों ने एग्जामिनेशन में अभी तक नहीं बताई? And that is very important when you are going to examine a patient with nerve injuries. कोई टनल साइन है कि नहीं? पल्सेशन आ जाएगी सर, पल्सेशन। कोई टनल साइन है कि नहीं? टनल साइन जी सर। क्या अभी तक किसी ने नहीं सर बताया? प्रोग्रेसिव टनल साइन किसी ने अभी तक टनल साइन नहीं बताया। अगर कोई बंदा नर्व पेरिफेरल नर्व की एग्जामिनेशन पे टनल साइन न चेक कर ले, आई थिंक इट इज नॉट गुड फॉर हिम। ओके, इस पेशेंट की इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, तो व्हाट यू विल डू देन? Then we will go for surgical option, sir. So how you will operate on this patient? What are the different options and how you will do it? Sir, first of all, we will explore the wound. We will identify the site of the trauma, and we will do the anastomosis of the nerve. If there is any neuroma formation, कैसे we will करेंगे? How you will do it and how you will decide it? into it, sir. नहीं, एनास्टोमोसिस कब करेंगे आप? Sir, after 18. हर चीज की कोई इंडिकेशन बनती है ना। आपने खोला, ठीक है, आपने जब खोला तो हाउ वुड यू डिसाइड व्हाट टू डू? और वहां पे क्या क्या ऑप्शन आपके पास है? जी, कोई और बंदा बता सकते हैं एग्जाम वाले? we go for surgery when after 6 months there is no improvement in AMG. So AMG पे कुछ नहीं है तो then we go for surgical intervention. आपने खोला है भाई, आप and if it's
हम सर्जरी कर रहे हैं, हमने खोल दिया ना, आपने वोंड खोला, आपको नीचे नर्व नजर आ रहा है ना, सो उस वक्त क्या करेंगे आप, क्या कर सकते हैं आप? जी सर, आपकी आवाज कट रही है भाई। सर पहले जो अगर कंप्लीट और बंदा ट्रांजैक्शन बताएं है जिसकी आवाज क्लियर आ रही है। सर पहले So may I answer it? Sir, in this case, peroperatively, if we explore it and we find a neuroma, in that case, we will do the nerve conduction studies. And if there is a drop of more than 50% in the more sized, if the drop is less than 50%, then internal neurolysis or external neurolysis can be done in this case. जी वासु साहब, और कुछ आप पूछेंगे इसमें? जी नेक्स्ट सवाल है, एक कमेंट ये है कि जी फेसिकुलेशन एंड फिब्रिलेशन भी देखनी चाहिए एग्जामिनेशन में। और दूसरा अहम सवाल, अगर फर्ज करें ये केस जो है आप इसका कॉमन पेरोनियल का नहीं है क्लिनिकली, ठीक है, पेशेंट आपके पास आया है हिस्ट्री ऑफ सियाटिका फॉर 3 months, और जब आपके पास आया है तो उसका पेन सही हो गया है और फुट ड्रॉप है, और एमआरआई पे एक डिस्क है which is pressing on L4-5, तो क्या करेंगे आप? Sir, studies suggest that we can operate even if there is no pain, and they said that it has been reported that after a year they can improve in this motor function due to sciatica. तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, नहीं करते हैं, क्या है? सर पेनलेस को जो पेनलेस फुट होता है सर, ऑपरेट करने चाहिए सर। पेनलेस फुट ड्रॉप है, यस सर। उसका दर्द ठीक हुआ है, उसका कंसर्न है ये फुट के लिए, तो व्हाट यू विल डू? उसका दर्द ठीक हुआ है, वो कह रहे हैं कि जी स्टडीज हैं कि जी करना चाहिए। सर काउंसिल करेंगे कि फुट ड्रॉप हो सकता है, इम्प्रूव ना हो, और सर्जरी करेंगे सर। ठीक है भाई, मेरी तरफ से तो यही सवाल था। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, तो इसको कंप्लीटली एक साइड पे ना लेके जाएं, इसको आप बीच में ही रखें, हाँ कि जी ये भी है और वो भी है, एंड वी कैन डू इट, मेनी पीपल डोंट डू इट, तो इट्स कंट्रोवर्शियल। राइट सर। अच्छा ये बताएं कि अगर आपने एनास्टमोसिस करनी है, ठीक है, सब, और एनास्टमोसिस उस वक्त करते जब वहाँ पे न्यूरोमा एंड कंटिन्यूटी हो और उससे कोई नर्व कंडक्शन स्टडी वहाँ पे ना हो रही, कंडक्शन नर्व्स के नहीं हो रही हो, आप कट के आप रिसेक्ट कर सकते हैं और देन यू कैन गो फॉर एनास्टमोसिस। तो मुझे बताइए कि एनास्टमोसिस से कितने ऑप्शंस है, क्या क्या चीज़ हम एनास्टमोसिस के लिए कर सकते हैं? व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ एनास्टमोसिस? सर एंड टू एंड एनास्टोमोसिस होता है, एंड टू साइड एनास्टोमोसिस होता है, एंड इसके अलावा सर यही दो है। और क्या है? कोई ग्राफ रख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल जी हाँ सर, ग्राफ लगा सकते हैं। अच्छा ये बताइए, अगर आपने एंड टू एंड एनास्टमोसिस की, आपने ग्राफ्ट रखा, तो इस एनास्टमोसिस से या ग्राफ लगाने से क्या फायदा होगा इस मरीज को? सर इसमें यूजुअली सेंसेशन आ जाती है, मोटर फंक्शन बहुत लेट आते हैं या बहुत आते हैं। और अगर फायदा हो रहा है तो फायदा कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है उसमें? सर ये ग्राफ्ट जो होता है सर, ये सिर्फ हीलिंग प्रोसेस को, जो नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है उसको एक पाथवे प्रोवाइड करता है इस न्यूबॉर्न के ग्रोथ के लिए, और इसलिए ये ऑलमोस्ट जो 1 मिलीमीटर पर डे जितना है वो प्रोग्रेस करता है। तो ये ज्यादातर से जो फर्स्ट आता है हमारे पास, सेंसरी हमारे पास आ जाता है, मोटर थोड़ा बहुत आता है, कंप्लीट नहीं आता, लेकिन कुछ न कुछ बेहतरी आ जाती है सर। सो इट जस्ट प्रोवाइड अ ग्राउंड फॉर हीलिंग। उसको एक रास्ता देता है ना, क्योंकि उसका एग्जाम तो डिजेनरेट हो जाता है, उसका जो शीट है वो रह जाता है ना। एग्जैक्टली सर। सो दैट इज गिविंग अ वे, जो प्रॉक्सिमल पोर्शन है आगे बढ़ता है, अगर वो तभी हेल्प करेगा जब वो बिल्कुल उस टनल में चला जाएगा। टनल में नहीं गया तो फिर वहाँ पे न्यूरोमा सब बन जाता है ना। ठीक है, और सब कोई और पूछना है तो पूछ ले, मेरी तरफ से तो
क्वेश्चन बस काफी है। शॉर्ट केस के लिए टाइम दे दिया। अच्छा, मेरे ख्याल में काफी अच्छे केसेस बन गए, हमारा इतना ख्याल नहीं था। देखिए, आप लोग के लिए मेरा मशवरा ये है कि ये स्पेशली फुट ड्रॉप जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ ले पेरिफेरल नर्व्स। और पेरिफेरल नर्व जब भी आ जाए तो उसमें क्वेश्चन, मैनेजमेंट के क्वेश्चन कॉमन है सबके, कि क्या करेंगे, कब करेंगे, नर्व कंडीशन आप लोग पढ़े, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, कब ईएमजी करना चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, और एनास्टोमोसिस कौन से ऑप्शन है, कब करेंगे, कैसे करेंगे, प्रिंसिपल्स के जो क्लासिफिकेशन उसकी 2 है वो आप पढ़ें और देख लें। कल जो भी हमारे प्रेजेंटेशन है हम आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, कल हमारा टॉपिक प्रेजेंटेशन है, तो फिर भी आप लोगों को हम बताएंगे और आप लोगों को इन्वॉल्व भी करेंगे। एग्जाम इस बार दो जगहों में है, कि इस्लामाबाद में है और कराची में है। मेरे ख्याल में लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर के लोग इस्लामाबाद में एग्जाम देंगे, और जो सिंध के और बलूचिस्तान के हैं वो कराची में एग्जाम देंगे। ओके सर। सर वी विल मिस यू। आप इस्लामाबाद आएंगे सर? नहीं, हम कराची में होंगे, कराची में। ओके सर, थोड़ा सा एग्जाम फॉर्मेट भी काइंडली क्लियर कर दें। एग्जाम इस तरह होगा जिस तरह हम आजकल कर रहे हैं ना, यानी लॉन्ग केस शायद 2 हो, और आपको बस छोटा शॉर्ट से सिनेरियो देंगे, फिर आपने उस पर हिस्ट्री लेनी है, फिर आप एग्जामिनेशन इस तरह बताना है जिस तरह भी आप बता रहे, और उस पर इन्वेस्टिगेशन और बाकी वाई सारा वही होगा। कैंडिडेट किधर होंगे? ठीक है, कैंडिडेट कहाँ पे होंगे, घर में होंगे या नहीं, कैंडिडेट उधर होंगे सर, मरीज नहीं होगा, वहाँ पे होंगे। लैपटॉप यानी पेपर पेशेंट्स होंगे, जिस तरह ये वाला पेपर पेशेंट है ना, जस्ट लाइक दैट। सर, एक रूमर सर्कुलेट कर रही है कि शॉर्ट केसेस की जगह पे न्यूरो रेडियोलॉजी और न्यूरो एनाटॉमी के 15। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मसूद साहब, थैंक यू सर। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you.